आपका जो इनिशियल जर्नी है, जो आपका स्टूडेंट लाइफ है, आपका जो बेस है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, सो दैट हम पहचान पाए या हम समझ पाए कि आप कहां कहां से इतना समय निकाल पाते हैं इतना सब कुछ करने के लिए। देखिए, बेसिकली आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश। सो जन्म वहीं कुशीनगर में हुआ है। गौतम बुद्ध का जो निर्वाण स्थली है, जहाँ पे गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी, तो वो मेरा जन्म स्थान है। आई स्टडीड देयर टिल माई 8th क्लास। 8th क्लास तक मैंने पढ़ाई यूपी में ही की है। ओके। आफ्टरवर्ड्स आई मूव टू हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। माई फादर वॉज वर्किंग देयर, सो आई कंटिन्यूड माई एजुकेशन देयर टिल ग्रेजुएशन। तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी से मेरी पढ़ाई हुई है हैदराबाद में। ग्रेजुएशन किया वहाँ से मैंने कॉमर्स में। देन अगेन आई मूव बैक टू लखनऊ टू डू माई मास्टर्स। आई डिड माई MCom देयर एंड MBA and complete my PhD in Lucknow University of Lucknow, under the guidance of Professor Dr. Dinesh Sharma, who later became the mayor of city and then deputy CM of Uttar Pradesh, so in the previous Yogi government. After completion of my all the academic journey, I again moved to Hyderabad and I started my career in academics as the professor in management in a very renowned institution, well-known institution known for commerce in Hyderabad. It is Badruka College of Commerce. I served there for 2 years. Then I came back to Indore. I joined one of the institution here in private institution. I served there for 10 months. And then I joined Prestige Institute of Management and Research, PIMR Indore. I served there for 9 years. And in this journey, in PIMR and when I came to Indore, in the year 2010, and I also joined with the initiative of Indore Municipal Corporation as the brand ambassador for Swachhata, and leading the academics, approaching different institutions, colleges and schools, and creating the awareness about the sanitation and Swachh Bharat Abhiyan of the government. So since last 7 years, I am working as a brand ambassador. Still I am working as a brand ambassador. So while working in Prestige Institute, I learned many things of management, and I initiated one incubation center, which was the government grant, and I got that grant. I was the founder CEO of that incubation center. I was the project head, also principal investigator. It was 10 CR of grant. Then we established the incubation center. We have our domain was food and agri. So because Indore is known for, and Malwa Plateau is known for food and agri. So for agriculture and food, we got the many student startups, and along with the food and agri startups, we have also initiated some startups from fintech and clean tech, because Indore is known for Swachhata also. Fintech and clean tech, some from agri-tech also. So after that, during that course, I also work for entrepreneurship cell of PIMR, and where we have I was also part of NEN, National Entrepreneurship Network. Won many awards for entrepreneurship since year 2012. We went to Bengaluru to get the award of Vadvani Foundation. So we were all India runner-up. Okay. IIM Ahmedabad was the first, and we were the second. Okay. So this was the journey, and after that I was more into the student entrepreneurship segment, and working very closely with the students 24/7 as the mentor. Well, I'm just trying to ask you one thing, that पहले उत्तर प्रदेश उसके बाद हैदराबाद जी, complete different culture. Yeah, it was very tough for me when I went to Hyderabad. Because class 8 के बच्चा जब एक स्टेट चेंज करता है, स्कूल चेंज करता है, दोस्त चेंज हो जाते हैं, वो कैसा समय था? It was very tough time for me, because when I moved from Uttar Pradesh, and we were very close to Nepal border. Okay. And very close to Bihar border. So वहाँ पे जो सेटअप है, जो सिस्टम है, अगर एजुकेशन सिस्टम भी देखे वहाँ का, I studied in government college, government school, and it was government college actually from 6th class to 12th class. Okay. So intermediate college we are using a term there. 6th class में English शुरू हुई थी. Okay. Till 5th class there was no English. और 6th क्लास से ABC पढ़ना शुरू किया. अरे बाप रे. और 8th क्लास में यानी 9th में मैं हैदराबाद चला गया.
एंड ये कौन से And- ईयर की बात कर रहे हैं हम? मैं हैदराबाद। बात कर रहा हूँ आपको 1998 की बात कर रहा हूँ। तो The year 9th में 6th से आपने इंग्लिश पढ़ना शुरू किए शुरू किया, और 9th में आप हैदराबाद चले गए। हैदराबाद चला गया। 2 साल मैंने कैसे कैसे भी करके, अब स्कूल में ABCD पढ़ाते थे, तो वहां तक अभी तो वर्ड्स फॉर्मेशन शुरू किया था। और हैदराबाद में तो वाज इंग्लिश मीडियम। तो इट वाज हिंदी मीडियम एक्चुअली, बट देयर वाज नो बुक्स अवेलेबल इन हिंदी. We searched for the Hindi medium so that I can accommodate myself there. We found one school, Keshav Memorial High School, ओके। and it was Hindi medium. They were having Hindi medium, English medium, and Telugu medium. All 3 mediums were there. I opted for Hindi medium. बिकॉज वहां पे वो बहुत कम होता होगा। हाँ, वो जो बाहर के लोग जाते थे वही होते थे। हाँ। अदरवाइज जो डिफेंस के ट्रांसफर होते थे वो बच्चे वहां पे आते थे। तो मैं तो इसी इंप्रेशन में गया था कि आई एम इन हिंदी मीडियम, सो आई विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल द बुक्स, एवरीथिंग, बट आई डिडंट गेट बुक्स। बुक्स सारी इंग्लिश में ही थी, लिखना हिंदी में था। बट आवर टीचर्स वर वेरी सपोर्टिव. They were working like very true mentors. I remember one my science teacher, Ramchandra sir, Ramchandra Kumar. I remember his name. He was a person who used to translate books. इंग्लिश का हिंदी कर देते। इंग्लिश का हिंदी, इंग्लिश का तेलुगु भी करते थे. ओके। He was from Telugu only, Telugu state only. क्योंकि वो एक ऐसा स्टेट है जो आज के तारीख में तो कॉस्मोपॉलिटन है, लेकिन हाँ। तब भी वो तेलुगु डोमिनेटेड ही था। हाँ, अभी भी है, अभी भी काफी हद तक है, लेकिन अभी तो है, जैसे आपने कहा कि बहुत सारी जगह के लोग वहां पे पहुंच चुके हैं, अब वहां पे सिस्टम थोड़ा बदला है, बट स्टडी में तो ये प्रॉब्लम थी. बट वी वर फॉर्चुनेट टू हैव आर रामचंद्र कुमार सर, जो कि बुक्स ही ट्रांसलेट करते थे, और शासन की ओर से, यानी जो भी ऑफिशियल, ही वाज ऑफिशियल, तो उनके पास ये था कि बुक को ट्रांसलेट करके दे देते थे बच्चों, ये लो, ये पढ़ो, इसको इजी हो जाता था। इजी होता था. बट देयर वाज वन सब्जेक्ट कॉल्ड तेलुगु. ओके। एंड दैट वाज, मुझे याद है कि तेलुगु तो मैं बोलना तो मुझे पूरा आ गया. अच्छा। यस, आई कैन स्पीक तेलुगु वेरी फ्लुएंट मैनर. दैट्स ग्रेट। बहुत बढ़िया तरीके से बात कर सकता हूँ, और लिखना मुझे नहीं आता है. और जो असेंबली होती थी स्कूल की, उसमें मैं तेलुगु में जो प्लेज होता था, क्योंकि वहां पे हमने, चूंकि तीनों मीडियम थे, तो 2 दिन इंग्लिश मीडियम का प्लेज होता था, 2 दिन हिंदी मीडियम का प्लेज होता था, और 2 दिन तेलुगु मीडियम का प्लेज होता था. अच्छा। इस तरीके का पूरा सिस्टम था उसमें. तो मैंने तो हिंदी मीडियम वाला प्लेज मैं लेता था, लेकिन कभी जो वो तेलुगु मीडियम का जो प्लेज लेने वाला स्टूडेंट अगर एब्सेंट होता था, तो वहां पे तो भी जाना मैंने पड़ता। सुन के तेलुगु भी मुझे याद हो गई थी, और मैं तेलुगु का प्लेज आज भी मुझे पूरा याद है. मतलब आप तब तक घुल मिल गए। हाँ, इतना घुल मिल गया. दूसरा जो सबसे टफ मेरे था कि तेलुगु तो एज अ सब्जेक्ट मैं तो ले ही नहीं पाता, क्योंकि मुझे तो उसकी लिपि आती ही नहीं थी. Yes. मैं उसको लिख ही नहीं सकता था. यस। So there was one option for those who are from North India. They can opt special English. ओके। यानी एक इंग्लिश तो ऑलरेडी इतनी टफ है जो आप पढ़ रहे हैं. उसके बाद से 8th क्लास में पढ़ने के बाद से 8th क्लास तक ABCD और वर्ड फॉर्मेशन तक आने के बाद से आपको 9th में एक इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट है, और तेलुगु को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए तेलुगु की जगह पे आपको एक स्पेशल इंग्लिश पढ़नी है, जो कि नॉन डिटेल है. स्टोरीज है पूरे इसमें, फिक्शन, और वो स्टोरी को पढ़ना है, और स्टोरी के बारे में पैसेज पढ़ के उसके आंसर देने हैं. एक धनुष से 2-3 मार दिया। एक धनुष से 2-3 मारना है. और जिसको इंग्लिश में इतनी टफ जिसको लग रहा है, वो स्पेशल इंग्लिश कैसे पढ़ेगा, इसके लिए चले. यस। I remember my mother was also teacher. She was a Hindi teacher there, ओके। working in one of the private college there. तो उनकी एक फ्रेंड थी, she was the English teacher. तो उन्होंने मेरा बहुत हेल्प किया, बहुत. she was Christian, I remember. तो मैं शाम को उनके पास जाता था, और मुझे बहुत प्रेम से पढ़ाती थी, बहुत ही बेसिक तरीके से, सिस्टमेटिक की इसका आंसर ऐसे लिखना है. मुझे ये भी एक घटना याद है कि एक आंसर लिखना था, उसमें यस नो में आंसर देना था. तो मुझे आंसर तो पता था कि यस है, बट वाई यस लिखने की जगह मैंने यस बना दिया था, और उसको उन्होंने राउंड करके मुझे दिया था कि ये ऐसे यस नहीं लिखते हैं. मैंने कहा यस इसको भी बोलते हैं. बोलते नहीं, यस बोलते हैं, इसके ऊपर लिखते हैं वाई यस, ये वाला यस यहाँ पे लिखा जाता है.